उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपने माइक को अनम्यूट करें और आज के कार्यक्रम सब्जेक्ट के अनुसार अपनी स्पीच रखेंगे। तो मैं सबसे पहले, ये मुझे एक नाम दिख रहा है, लीजा बरुआ। आपसे मेरा अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट करें, और अगर संजीत बरुआ जी इससे जुड़े हैं इसी आईडी से, तो आपसे अनुरोध है कि अनम्यूट करते हुए अपनी बात को रखें। लीजा बरुआ। नहीं सुन पा रहे हैं बात को। लीजा बरुआ जी, अगर आप जुड़े हैं, मुझे दिख रहे हैं, तो अपने माइक को अनम्यूट करें। इसके बाद मैं अनम्यूट करता हूं तापस कुमार बरुआ साहब से मेरा अनुरोध है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और आज के वेबिनार पर अपनी स्पीच रखें। मिस्टर तापस बरुआ जी, तापस कुमार बरुआ जी। जी कंटिन्यू कर रखें, प्लीज कंटिन्यू। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। आप राष्ट्रीय महासभा का जो अध्यक्ष है और जो कार्यकर्ता है, सबको नमन करता हूं। जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़े हुए हैं उसको भी नमन करता हूं। आगे से हाथ हटा लीजिए प्लीज, हाथ हटा लीजिए कैमरा के आगे से। जी जी कंटिन्यू। मैं त्रिपुरा का हूं, तो हम बोलना चाहता हूं कि हम रिमोट एरिया में रहता हूं, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम है। हम इसीलिए हमको बहुत तकलीफ होता है। फिर भी आप जो उद्योग उठाया है, हमारा जो बौद्ध समाज है, इसके लिए आपको आभार व्यक्त करता हूं। तो और एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो लैंग्वेज है वो बंगाली है, इतना अच्छा हिंदी नहीं आता है। फिर भी प्लीज स्पीच बंगाली, बंगाली में ही रखिए आप। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। বলছি কি আমাদের এখানে তো অনেক প্রবলেম, তো আপনারা যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের মধ্যে এরকম কেউ কাণ্ডারি নেই যে এই আমাদের বৌদ্ধ সমাজের জন্য বিশাল কিছু একটা করতে পারে। তো আপনাদের এরকম প্রোগ্রাম দেখে আমরা খুব উৎসাহিত বোধ করছি। আমরা যতদূর পারি আপনাদেরকে সাহায্য করব, তবে নেতৃত্ব দিতে হবে আপনাদেরকে, আমাদেরকে সঠিক দিশা দেখাতে হবে। তো আজকে আমাদের ত্রিপুরায় আমাদের বৌদ্ধ সমাজ অবহেলিত, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি নতুন একটা জাগরণ এসছে, সেটা অবশ্যই আপনাদের মাধ্যমে। আজকে ভারতবর্ষে আমরা বৌদ্ধ ধর্মের এক উন্মাদনা দেখতে পাচ্ছি। সেই উন্মাদনাটা আরো ফলপ্রসূ করার জন্য, আরো সুদূর প্রসারী করার জন্য আপনাদের একান্ত সহযোগিতা অবশ্যই কামনা করি। আপনাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক এই কামনা করি। সঙ্গে আমাদের ত্রিপুরা যারা আছে, আমি অনেকের সঙ্গেই লিঙ্ক আপ করিয়েছি এটার সঙ্গে, বা রাষ্ট্রীয় বৌদ্ধ মহাসভা সম্পর্কে আমি ওদেরকে বলছি যে আসুন আমরা ওদের সঙ্গে এক মিলে কাজ করি। আমাদের বৌদ্ধ সমাজকে এগিয়ে নিতে হবে। তো সবার সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। তো আপনাদের তরফ থেকেও আমরা বেশ সহযোগিতা পাচ্ছি বলছেন, আমরা বলতে পাচ্ছি। আজকে আপনাদের মাধ্যমে আমরা রাষ্ট্রীয় বৌদ্ধ মহাসভাতে কথা বলতে পারছি, আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি। তো সেই জন্য আপনাদেরকে আবার ব্যক্ত করছি। তো এইটাকে আরো সুদূর প্রসারী করতে গেলে প্রথমে আপনারা এর আগে অনেকগুলো প্রোগ্রাম আমি অ্যাটেন্ড করেছি, শুনছি যে আমাদের মধ্যে শিক্ষার হারটা বোধহয় কম, বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলে, এবং
আমাদের ত্রিপুরায় আমরা জনগোষ্ঠীও আমরা অল্প মাত্রায় আছি, আর যারা আছে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে একটু উপজাতি সম্প্রদায়ের। তো ওখানে একটু শিক্ষার অভাব। তো আমরা যদি সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা করি, আমরা আমাদের বৌদ্ধ সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হব। তো আপনারা যেরকম উদ্যোগ নিয়েছেন অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। এটা আমরাও এতে হাত বাড়িয়েছি। হয়তো বর্তমানে আমাদের খুব কম পরিমাণে লোক সংখ্যা হয়, সেইভাবে আমরা আপনাদেরকে আসতে পারছি না, কিন্তু আগামীতে আমি বলছি যে আমাদের মধ্যে একটা সংগঠিত রূপ দেখা যাবে। আমাদের যারা যুবগোষ্ঠী আছে ওদেরকে আমি উৎসাহিত করব, কারণ আমি একটা মন্দিরে বিহারের, আমি প্রাচ্যবিদ্যা বিহারের আগরতলায় আমি সেক্রেটারি। তো এখানে আমার কিছু দায়িত্ব বোধ থেকে যায়। আমি আপনাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা করব। এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ করছি। আপনাদেরকে আবার প্রণাম জানাই। আপনার এটার রাষ্ট্রীয় বৌদ্ধ মহাসভার তাদের শ্রীবৃদ্ধি হোক, এবং সংগ্রাম যাতে জারি থাকে। সংগ্রাম ছাড়া কোনো কিছু হবে না, সংগ্রাম করে সবকিছু নিয়ে নিতে হবে। আম্বেদকর সাহেব আমাদেরকে কি দেখিয়েছেন, একটা সুন্দর রাস্তা দেখিয়েছেন। ওনার কথাগুলো আমি পড়ি, এত ভালো লাগে। হয়তো আমি অনেক কিছুই জানতাম না, আজকে আপনাদের মাধ্যমে আমি জানতে পারছি। সেজন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাইকে আবার আমার নমস্কার জানিয়ে আমি এখানেই শেষ করছি। তো আমি একটু বলতে চাই, আমার এখানে আরো কয়েকজন বক্তা আছে, এখানে খুব নেটের প্রবলেম। তা সত্ত্বেও যদি আপনারা অনুমতি দেন আমি ওদেরকে সামিল করতে পারি, ওনারা কিছু বলবেন। কারণ এর আগের দিনে একজন বলেছিলেন যে হৃদয়কান্ত বাবু, বয়স্ক লোক, উনি খুব ভালো আমাদের বৌদ্ধ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। আপনারা যদি অনুমতি দেন তাহলে উনি আপনাদের সামনে কিছু বক্তব্য রাখবেন। এ বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। জয় বুদ্ধ, জয় ভীম। वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स मिस्टर तपस कुमार बरुआ जी। आपने बुद्ध के जो मार्ग हैं, आज से 2500 वर्ष पूर्व जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की जो स्थापना की थी, उसी के प्रतिक्रांति में खत्म करते हुए इस भारत से खत्म कर दिया था। और इसको पुनः बाबा साहब ने 1956 में फिर से जागृत कर लिपिबद्ध और राइट तैयार कर दिया। ये सुंदर मार्ग बाबा साहब ने हम सबको सही मार्ग दिया है, इसकी आपने व्याख्या की, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। साधुवाद। आईटी सेल प्रभारी मुकेश जी, आज के आप संचालक हैं, कृपया अपने माइक को अनम्यूट करें और आगे के कार्यक्रम को भी आप संचालित करें। जब तक मैं एक और पार्टिसिपेट को आमंत्रित कर देता हूं। लीजा बरुआ जी, आप जुड़े हुए हैं आईडी से, कृपया अपने माइक को अनम्यूट करें। प्लीज अनम्यूट योर माइक। लीजा बरुआ, लीजा बरुआ, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड वीडियो। माधव बरुआ जी त्रिपुरा, अगर आप जुड़े हैं। मोस्ट वेलकम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। दिस वेबिनार इज त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, 3 स्टेट। जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि मैं थोड़ा सा रास्ते में था, इसलिए विलम्ब हुआ। आज के जो वेबिनार हैं उसमें जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है मानिक बरुआ जी, उनकी अध्यक्षता में जो मीटिंग होने जा रही है हमारी मिस्टर, आज के जो गेस्ट हैं मिस रूसी जी मणिपुर से, मैं सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। मिस रूसी जी मणिपुर से, यदि वह जुड़े हैं तो आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए
और अपनी बात रखें। नेक्स्ट हमारे जो गेस्ट हैं संजीत बरुआ जी त्रिपुरा से। माननीय संजीत बरुआ जी अधिवक्ता जुड़े हैं, तो अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात को कंटिन्यू रखिए। आप हैंड रेस भी कर सकते हैं अन्य हैंडसेट से जुड़े हुए हैं तो। और नेक्स्ट हमारे जो वक्ता रहेंगे रोसी जी, जो कि मिजोरम से हैं। और नेक्स्ट जो है हमारे चकमा जी त्रिपुरा से। तो जो भी हमारे चीफ गेस्ट हैं, स्पीकर्स हैं, वे जुड़े हैं, तो कृपया अपने माइक को अनम्यूट करें। यदि अन्य साथी नहीं है संचालक जी, तो जो हमारे सीनियर साथी हैं उनमें से आज की मीटिंग को संपन्न कराइए। जी, आज काफी साथी तकनीकी समस्या की वजह से हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो माधव बीच राव में बरुआ जी जुड़े हैं, लेकिन वो वॉइस से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। वॉइस कनेक्ट नहीं हो पा रहा। जब तक उनसे संपर्क नहीं होगा तो वो बात नहीं रख पाएंगे। शायद अब जुड़ गए हों। डिस्कनेक्ट हो गए हैं माधव बरुआ जी। तो काफी समय से हमारे बीच में अधिकतर साथी जुड़े हुए हैं। कोलकाता से भी कई साथी जुड़े हुए हैं, हमारे त्रिपुरा मिजोरम से भी साथी जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में एक और जो साथी हैं रंजन सिंह जी, वो काफी समय से अपनी बात को रखना चाह रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह अपने माइक को अनम्यूट करें। नमो बुद्धाय, जय भीम सब जनों को। और अपने एक और हैंडसेट है साहब, उसकी वॉइस को बंद कर दीजिए ताकि आपकी वॉइस हम तक क्लियर आ सके। ओके, कंटिन्यू रखें सर। आज का विषय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे अध्यक्ष जी को नमो बुद्धाय जय भीम, और जितने भी आज के सेमिनार में बौद्ध उपासक उपस्थित हैं, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज के विषय में मैं सुन नहीं चाह रहा था आपसे सब दिनों से, अभी काफी दिनों से जुड़ा नहीं था मैं। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की इस सेमिनार में मेरा यही एक आपसे और हम सब एक सलाह के साथ कहना चाहूंगा कि जो आगामी हमारा प्रोग्राम लगा है सांची में, उसके उपलक्ष्य में थोड़ी बात करना चाहूंगा मैं कि हमने उत्तराखंड में चल करके किच्छा और जसपुर वगैरह में सब में काशीपुर सभी लोगों से सांची जाने के लिए कहा है। तो अब वहाँ की स्थिति क्या है ये मैं थोड़ा आपसे लोगों से जानना चाहता हूँ कि जाने की वहाँ पे स्थिति बनती है या ये कोरोना काल में कोई दिक्कत आ सकती है।
सर आपका जो भी क्वेश्चन है आप स्पष्ट रख दीजिए, जिससे कि हम आपके क्वेश्चन का आंसर लास्ट में आपको अवश्य अध्यक्ष मैं जी के यही द्वारा। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ की जो हमने यहाँ पे उत्तराखंड में जो लोगों की व्यवस्था की है जाने की वहाँ के, तो वो लोगों के फोन आ रहे हैं मेरे पास कि भाई वहाँ जाना है या नहीं जाना है। तो मैंने कि अब मैं जैसे भी हमारे जो उच्च अधिकारियों का मतलब आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। तो वहाँ जाने की व्यवस्था क्या है, मतलब वहाँ पे प्रोग्राम जैसे कोरोना काल में चल रहा है, दिक्कत आ रही है जाने की, तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ दिक्कत आए जाने में, मतलब प्रोग्राम तो लगेगा वहाँ पे। सर बिल्कुल, कार्यक्रम तो बिल्कुल फिक्स है, और केंद्रीय कार्यालय के जो नंबर हैं आप समय समय पे वहां से अपडेट आपको मिल जाएगा। केंद्रीय कार्यालय के नंबरों पे आप संपर्क में बने रहें, और अच्छा लास्ट में हमारे जो अध्यक्ष जी का उद्बोधन होगा आपको उसके माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हमने यहाँ से ना एक बस ले जाने का तय किया है उत्तराखंड से। तो बस वालों का थोड़ा ये है कि पहले से ही करना पड़ता है उसे, तो इसलिए अभी अभी रुक जाते हैं फिर थोड़ी देर, थोड़े दिनों और। नहीं सब तैयारी तो पूरी रखें बिल्कुल, और जैसे ही जो भी समय पे आपको निर्देश मिलेगा आप उसके हिसाब से पूरा तैयारी रखें। चलिए सर, ठीक है ओके। सर, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। माननीय हमारे उत्तराखंड से साथी जो जुड़े हुए हैं रज्जन सिंह साहब, उन्होंने काफी अच्छी जानकारी हमारे बीच में रखी। उनका जो क्वेश्चन था वह उन्होंने अपने बीच में रखा है, तो हम बिल्कुल उनके जो क्वेश्चन है उसका आंसर उपलब्ध होगा बिल्कुल, तो आप जुड़े रहें। नेक्स्ट हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं त्रिपुरा से एक हमारे माधव जी जो जुड़े हुए थे, मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ, शायद वो जुड़ गए हैं। एक और हमारे साथ ही जुड़ गए हैं तेजस राघवेंद्रा जी, तो मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा तेजस राघवेंद्रा जी को कि वह अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। 5 और 6 फरवरी जो हमारा विशाल बौद्ध धम्म समिति का कार्यक्रम है सांची में होने जा रहा है, उसके संबंध में। नमस्कार सर, आपका 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 वीडियो ओपन कर लीजिए साहब, आपके स्क्रीन पर। ओके हो गया। मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ, और इस मीटिंग के बारे में इस मीटिंग के बारे में बीएल कदम सर ने बताया था, और उन्होंने और मैं भी बौद्ध धर्म और बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मानता हूँ, और इस मीटिंग में शामिल होना चाहता हूँ। ओके ओके। आप सब किस जिले से और किस प्रदेश से हैं, तो आप थोड़ा सा हमें बताएं। आप तक के हमारी आप अपने माइक को पुनः अनम्यूट करें माननीय तेजस राघवेंद्रा जी। ओके मैं बैंगलोर से हूँ। ओके। हाँ, आप अपना साहब कांटेक्ट नंबर जो है वो आप हमें चैट बॉक्स में अवश्य दे दीजिएगा, जी और सर। आपके जो भी आपकी बेंगलुरु में जो भी आपकी संबंधित कोरी होंगी बिल्कुल हम उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और बताएं साहब आपके वहाँ पे क्या तैयारी है। आ, इधर मैं बीए पढ़ रहा हूँ, और मैं स्टूडेंट हूँ इधर। ओके ओके। थैंक्स मिस्टर तेजस राघवेंद्रा जी, मोस्ट वेलकम आरवीएम थैंक यू सर। फैमिली। ओके। नेक्स्ट हमारे जो साथी हैं माधव बरुआ जी, भाई जुड़ गए हैं, लेकिन
उनका माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, तो मैं उनको पुनः मैसेज करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा मुझे। नेक्स्ट हमारे जो साथी हैं, मैं उनसे जुड़ना चाहूँगा। माननीय जोगेंद्रनाथ सरकार साहब, माननीय जोगेंद्रनाथ सरकार साहब, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। जी, साहब अपनी बात को कंटिन्यू रखें साहब। नमो बुद्धाय। बाबा साहेब को नमन करते हुए, सभी को नमन करते हुए मैं कुछ बोलने जाता हूँ। यहाँ पर कबीर चल रहा है हमारा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन कर दिया गया 15 तारीख तक, जनवरी का 15 तारीख तक। नहीं होगा तो एक तो रास्ता निकाल के आ जाएगा, लेकिन हम लोग पूरा तैयारी में है। कुछ जाऊंगा रास्ता हम लोग यहाँ से ढूंढ लिया है। हम लोग हावड़ा से सीधा जाएंगे वहां पर बितीसा। हेलो हेलो जी जी, ओके ओके। हेलो, ये हम जी जी जी, विदिशा आप, हाँ विदिशा अभी स्टेशन हम नियर सांची। मैं सर मैं अभी ट्रेन में हूँ, टाटा से अभी हावड़ा लौट रहा हूँ। मैं इंस्पेक्शन ड्यूटी से लौट रहा हूँ, ट्रेन में हूँ अभी। तो आप हो सकता है देख सकते हैं ट्रेन में हूँ, और ट्रेन में हम लौट रहा हूँ, लेकिन हम लोग तो तैयारी में है। हम लोग हावड़ा से सीधा जाएंगे बिदिशा। विदिशा से वहां पर हम लोग पार्टिसिपेट कर विदिशा में रहेंगे, और लौटने का टाइम इलाहाबाद होके लौटने से हम लोग को गाड़ी मिल रहा है। गाड़ी का प्रोग्राम हम लोग ठीक कर लिया। अभी कोरोना में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आइंदा बीच में हम लोग प्रचार बंद नहीं किया, कंटिन्यू रखा। क्योंकि प्रचार हम कंटिन्यू, हमारा 4 जिला में हमारा प्रचार चल रहा है। हम सांची में पहुंचने का तैयारी में है। सांची में अगर कम संख्या में अगर पूछे तो भी हमारा नहीं है कि हम प्रचार को कंटिन्यू रखा, और प्रचार को कंटिन्यू रखा और रखेंगे। और हमारा प्रॉब्लम हो रहा है दीवाल में जो होर्डिंग लगाना का सवाल है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी कुछ को लगाऊंगा, हम लोग को भी इसमें लगाऊंगा। ध्यान में है हम लोग सांची प्रोग्राम तो किया है, एक तो पूरा हमारा डायरेक्ट ट्रेन थोड़ा कम है, और दूसरा थोड़ा दूर है। यही हमारा समस्या है। सरकारी जॉब में है, लेकिन मैं समझता हूँ आदमी को हौसला बढ़ाता हो, जो हमको किसी तरह से बाबा साहेब को जो जगह स्पर्श किया है, वो जगह को हमको किसी तरह से पहुंचना चाहिए। हमारा समाज के लिए काम करने के लिए हम लोग यूनिटी बनाना चाहिए, और हम लोग को कन्विंस करना चाहिए सबको। सांची में किसी हाल में हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन दूर है और डायरेक्ट इसके वजह से हो सकता है हमारा संख्या में कुछ कम हो सकता है, लेकिन हम लोग पहुंचेंगे। और 15 तारीख तक लॉकडाउन का बाद ही हम लोग कुछ प्लानिंग कर पाएंगे जे हम लोग कितना आदमी जा पा रहा हूँ। अगर लॉकडाउन एक्सटेंशन ना हो तो अब तो हम लोग पहुंचेंगे ठीक ठाक। काफी संदा साहब से काफी हम लोग डिस्कस किए हैं। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं सर? हेलो, हाँ जी जी आप लोग जी सुन जी रहे हैं सर, सर? बिल्कुल आपकी हाँ, वो। सुन रहे हैं हाँ सर? सर, बिल्कुल। ट्रेन में है ना, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है सर, सॉरी। हमारा नेट कम नहीं कर रहा है ट्रेन में उतना। फिर भी हम अपना सभी आदमी का कन्वेंस में लगाया, ग्रुप में दिया, व्हाट्सएप में दिया, सारी जगह में प्रोग्राम हम बरकरार रखिए जे वहां पर हमको किसी तरह से पहुंचना है। तो हम लोग पहुंचेंगे, इसमें कोई नहीं है। हम लोग किसी हाल से पहुंचना है सांची में, ये हमारा संकल्प है, और पहुंच के ही रहेंगे वहां पर। अगर नहीं पहुंचा, जो आदमी को ले जाने के लिए हम लोग प्रयास किया, उन लोग को बोला प्रचार कंटिन्यू रखें। हम लोग यहाँ पर बुद्ध का जो धारणा है, सोचिए, जो सांची का बारे में जो हम लोग डिस्कशन किया, वो डिस्कशन को कंटिन्यू रखिए हम लोग। जब ये होर्डिंग हम लोग लगाएंगे, और ये हमारा भाग्य का बात है। अगर पहुंच गया है तो कितना हम भाग्य, हम तो उम्मीद करके रखा, हम सची में बहुत से आदमी लेके हम पहुंचेंगे और पहुंचते रहेंगे। हमारा लॉकडाउन अगर एक्सटेंशन ना हो तो
काफी आदमी लेके हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे सांची में जब भी है। और मैं समझता हूँ आप लोगों का कॉपरेशन है वहां पर, हम लोग वहां पर पहुंच जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक चीज है, इतना थोड़ा सा तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ तो कैसे होगा। हमारे लिए तो हाँ बाबा साहब ने कितना चीज कर दिया, हमारे से कितना चीज कर दिया। We are so much benefited due to the contribution of Ambedkar. So we have to reach the Sanchi. Anyhow, we have to reach the Sanchi. वो हमारे कंफर्म कर लिया हम लोग सांची पहुंचना है, किसी हाल से पहुंचना है, इसमें कोई दिमत नहीं होना चाहिए। हमारे लिए तो बहुत लड़ा कि इतना छोटा सा काम हम लोग नहीं कर सकते, किसी का बड़ा प्रॉब्लम का मुकाबला करने के हिम्मत हम रखते हैं। छोटा हम बाबा साहब का अगर सेना है तो किसी का दिक्कत में हम लोग वहां पहुंच सकता हूँ, खाना मिले या ना मिले, हमारा जेब में तो खाना रहेगा कंटिन्यू। 2 दिन खाना नहीं मिलेगा तो पानी तो मिलेगा, लेकिन उसी में हम वहां पर रह सकता हूँ। इतना हमको सीखा है बाबा साहब इस तरह से, यही हमारा संकल्प है। बहुत बहुत साधुवाद माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार साहब, आपका वॉइस हम तक नहीं आ पा रहा है, कनेक्ट और शायद नेट प्रॉब्लम। दूसरा आदमी है, अभी सभी को हम नमन करते हुए हम हमारा बात यहाँ विराम रखने चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय साहब। माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार साहब, आपने काफी उत्साहवर्धक हमारे बीच में जानकारी रखी है। आप काफी उत्साहित हैं सांची के धम्म संगति कार्यक्रम को लेकर और काफी साथियों के साथ आप आना चाहते हैं। कुछ बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, सभी के साथ हैं। कोविड का बीच में हमारे साथ काफी साथियों को उसका स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम बिल्कुल उसकी भी जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। आप लेकिन तैयारी अपनी पूरी रखें। नेक्स्ट हमारे जो भी वक्ता जुड़े, मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय हेमन यादव साहब, हेमन यादव साहब हमारे हेमन यादव साहब हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह अपने आप माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात को रखें। 5 और 6 फरवरी जो सांची में 2 दिवसीय विशाल बौद्ध धम्म संगति का कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके संबंध में माननीय हेमन यादव साहब। नेक्स्ट हमारे बीच में जो वक्ता होंगे तो मैं उनको भी अनाउंस करना चाहूंगा। माननीय रविंद्र कुमार साहब यदि हमारे बीच में जुड़े हुए हैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह अपने माइक को अनम्यूट करें। माननीय रविंद्र कुमार साहब। माननीय रविंद्र कुमार साहब, यदि आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है तो आप अपने माइक को अनम्यूट करें। हमारे बीच में मिस्टर जितेंद्र कुमार साहब भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह अपने माइक को अनम्यूट करें और आज की इस वेबिनार में विशाल बौद्ध धम्म संगति 5 और 6 फरवरी सांची में आयोजित होने जा रहा है, उसके संबंध में अपनी जो तैयारी है, अपने स्पीच है, अपना जो भी क्वेरीज है, वो हम सभी साथियों के बीच में आप बिल्कुल रखने के लिए सादर आमंत्रित हैं। माननीय जितेंद्र कुमार साहब। ओके, आपका माइक अनम्यूट हो गया है जी। नमस्कार, जय बुद्धाय। जी जी, जय नमो बुद्धाय, जय भीम। हम पलामू झारखंड से हैं जी। झारखंड पलामू से हैं। तो हम लोग यहाँ से प्लान बनाए हुए हैं सांची आने के लिए। हम लोग लगभग यहाँ पे लगभग 50 से 60 लोग हो गए हैं, जिसमें
सभी का रिजर्वेशन भी हो चुका है यहाँ से। हम लोग के यहाँ से एक गाड़ी आती है शक्तिपुंज, और शक्तिपुंज से हम लोग हो सकते हैं कि 60 से 70 या 80 आदमी लोग यहाँ से चलेंगे विद फैमिली। तो हम लोग का सारा तैयारी हो चुका है पहले ही, और हम लोग जरूर आएंगे। अगर कोरोना काल में भी ऐसा रहा तो भी हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरी तरह से सबको लेकर आए, लेकिन आएंगे जरूर। इसलिए कि हम लोग खुद हेल्थ विभाग में हैं और यहाँ पे थोड़ा सा कोरोना का पेशेंट बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसको देखते हुए हम लोग आएंगे। हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, वो भी अपनी पूरी तैयारी कर लिए हैं कि चलना है तो चलना है हम लोग को, और हम लोग आएंगे, पूरी तरह से आएंगे वहाँ पे सांची में। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। माननीय आपके द्वारा काफी अच्छी जानकारी हमारे बीच में रखी गई है कि आप काफी अधिक साथियों के साथ आपकी तैयारी है। 50 से 60 लोगों की, सदस्यों की आपकी जो सांची को लेकर तैयारी चल रही है वह काफी उत्साहवर्धक है। अन्य हमारे जो स्टेट के साथी जुड़े हुए हैं उनके लिए एक उत्साहवर्धन का काम है कि इस परिस्थिति में भी आपका जो उत्साह है वो काफी ऊपर है कि सांची में जो विशाल बौद्ध धम्म संगति होने जा रही है उसमें आप बिल्कुल पहुंचने के लिए आप इच्छुक हैं और तैयारी आपकी काफी अच्छी है। तो माननीय जितेंद्र कुमार साहब, आप बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं सांची के इस विशाल बौद्ध धम्म संगति कार्यक्रम में। कोविड की वजह से काफी लोगों को ये बात की शंका हो रही है, बार बार हमारे बीच में ये प्रश्न उठ रहा है, लेकिन ये हमारे लिए जो भी है, आगे हमें जो भी समय अवसर मिलेगा, इसके क्वेश्चन आपके बीच में जो भी आपके दिमाग में चल रहे हैं वो डाउट जरूर क्लियर किए जाएंगे। अभी बिल्कुल आप उत्साहवर्धन रखें और हमारा कार्यक्रम जरूर होगा, हम इस तैयारी में लगे हुए हैं। तो नेक्स्ट हमारे जो साथी जिनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, माननीय रविंद्र कुमार साहब हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। प्लीज आप हमारे बीच में अपनी बात को रखें। माननीय रविंद्र कुमार साहब, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। जी, ओके। माननीय रविंद्र कुमार साहब, अब तक यदि मेरी वॉइस पहुंच रही है तो मैं आपको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा इस वेबिनार में। 5 और 6 फरवरी की जो विशाल बौद्ध धम्म संगति सांची में होने जा रही है उसके विषय में आप अपनी जो तैयारी है वह आप हमारे बीच में रखें इस वेबिनार में। माननीय रविंद्र कुमार साहब। नेक्स्ट हमारे बीच में एक और साथी जुड़ गए हैं, माननीय श्याम जी। मैं सम्मान के साथ उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह अपने बात को रखें। माननीय श्याम जी। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए सर और वीडियो को भी ओपन कर लीजिए। आपके स्क्रीन पर वीडियो का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको ओपन कर लीजिए। आपका शायद नेट मुझे लगता है थोड़ा वीक है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है हम तक। जी, आवाज नहीं जा पा रही है। हाँ हाँ, थोड़ा तो प्रॉब्लम है। जी जी। जी बताएं साहब, आप किस अपने जिले से और किस राज्य से हैं, और आप आपके जो जो जिले की तैयारियां हैं आपके
वो हमारे बीच में आप अवगत कराएं, माननीय श्याम कुमार जी। जी। और तो माननीय श्याम कुमार साहब की वॉइस हम तक क्लियर नहीं आ पा रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। चलिए हम हमारे नेक्स्ट जो साथी जुड़े हुए हैं हम उनके पास चलते हैं। हम बड़े ही सम्मान के साथ उनको सादर आमंत्रित करने चाहेंगे। माननीय कृपाल सिंह साहब हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। माननीय कृपाल सिंह साहब, आप अपने माइक को अनम्यूट करें और आज की जो वेबिनार है उसमें अपना उद्बोधन रखें। माननीय कृपाल सिंह साहब। नेक्स्ट हमारे बीच में एक और साथी जुड़े हुए हैं, माननीय कोडूलाल यादव जी। मेरा उनसे भी आग्रह है कि आप भी अपनी बात को रखें। माननीय कोडूलाल यादव साहब। हाँ सर, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय साहब, आप अपने वीडियो को ओपन कर लीजिए। ओके ओके, जी हो जी गया जी। जी, मैं शहडोल जिले से हूँ जी और हमारे यहाँ श्यामलाल जी हैं और सभी को एक्साइट करते रहते हैं जितने भर साथी हैं। तो सभी लोग प्रयास करेंगे, माने पूरा पूरा प्रयास ही रहेगा हमारा, कोई भी रहे चाहे कुछ भी रहे, हम लोग सांची पहुँचने का प्रयास करेंगे सर। और जी मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, आज इसके पहले बात ही नहीं किया मैं। जी जी जी, आप यहाँ हमारी मार्केट में हूँ अभी। वेबिनारों में निरंतर जुड़ते रहें। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका साहब। जी, क्योंकि मैं जुड़ता आपका जुड़ता नाम मैं हमेशा हूँ, मैं जुड़ता हमेशा हूँ। जी जी जी, KL यादव के नाम से है, उससे पूरा नाम आ जाता है। अच्छा जी अच्छा अच्छा। जी जी जी, थैंक्स थैंक्स, साधुवाद। जी, है अपने यहाँ काफी लोग हैं ये पपौन में, अच्छे लोग हैं, जी काफी समझते हैं और काफी लोग आने का प्रयास करेंगे सर। ये जी व्यवहारिक जी तहसील के अंतर्गत पड़ता है पपौन। जी जी, ओके ओके, ठीक है सर, पहली बार आपसे हुई। जी जी बिल्कुल। जी जय भीम नमो जुड़ते रहें बुद्धाय। साहब, जुड़ते रहें वेबिनार से हमारी। जी 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 ओके। जी 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 यदि माननीय श्याम जी आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है तो आप उन्हें अपने माइक को अनम्यूट करके अपनी बात पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथी एक और जुड़ गए हैं, विक्रम पाल साहब। माननीय विक्रम पाल साहब, यदि आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है तो माननीय विक्रम पाल साहब आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और आज की जो वेबिनार है उसमें अपनी बात रखें। जो सांची में विशाल बौद्ध धम्म संगति कार्यक्रम होने जा रहा है 5 और 6 फरवरी के संबंध में। क्योंकि समय भी हो रहा है तो हमारे बीच में काफी साथियों के द्वारा क्यूरी और क्वेश्चन रखे गए हैं, उनको भी हमें क्लियर करना है। तो आज की जो अध्यक्ष कर रहे हैं माननीय हमारे, उनको आमंत्रित करने से पूर्व में आज के जो वक्ता हैं मैं उनको पुनः एक बार अनाउंस करना चाहूंगा। माननीय ऑन मिस रूसी मणिपुर से, माननीय संजीता बरुआ झा बरुआ जी त्रिपुरा से, माननीय रोशी जी मणिपुर से, माननीय विप्लव चकमा जी त्रिपुरा से, ये हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं। इसके अलावा हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं माधव बरुआ जी त्रिपुरा से, तपस कुमार बरुआ जी त्रिपुरा से, और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय सिद्धार्थ सिन्हा जी जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी हैं त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर। तो आज की जो मुख्य अतिथि हैं, मुख्य अतिथि महोदय माननीय सिद्धार्थ बरुआ साहब यदि हमारे बीच में जुड़े हैं तो मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय सिद्धार्थ बरुआ साहब, आप जिस भी हैंडसेट से जुड़े हैं तो आप अपने माइक को ओपन कर सकते हैं, इसकी परमिशन है, अलाउ है।
माननीय सिद्धार्थ बरुआ जी। हाँ, माननीय सिद्धार्थ बरुआ साहब, आप सादर आमंत्रित हैं। माननीय सिद्धार्थ बरुआ साहब। चलिए हम आज के जो मुख्य अतिथि हैं माननीय तपस बरुआ जी और माधव बरुआ जी, उसके बाद जो मुख्य अतिथि सिद्धार्थ सिन्हा जी हैं, यदि पुनः मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा, यदि वह जुड़े हैं तो हमारे बीच में आज के जो उद्बोधन है 5 और 6 फरवरी विशाल बौद्ध धर्म संगति जो सांची में होने जा रहा है उसके संबंध में आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय हमारे मानिक बरुआ साहब त्रिपुरा से। हम उनको सादर आमंत्रित करना चाहेंगे। माननीय मानिक बरुआ साहब। रविंद्र कुमार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका हैंड रेस हुआ है। आप अपने माइक को ओपन करें साहब, माननीय रविंद्र कुमार साहब। ओके सदस्यों को हमारा जय भीम। जी, जय भीम जय भीम। मैं सबसे पहले भाई जिन्होंने मुझे पता नहीं कैसे हमारे को यहाँ तक जोड़ी और मैं बहुत कुछ समझ पाया हूँ। और क्योंकि अभी सर हमारा संबोधन कर रहे थे हमारे नाम से, लेकिन क्योंकि मेरी बेटी का तबीयत खराब है और वो सो रही थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। तो जिसका जगह में हूँ लाइट आ गई है तो मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। सर सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। सबसे पहले सर मैं अपना परिचय दे दूं। मैं गुजरात वेस्टर्न रेलवे में था और उसके बाद फिर अभी हाई स्कूल झारखंड में, हाई स्कूल में, क्योंकि मेरा नेटिव झारखंड है तो अभी मैं झारखंड हाई स्कूल में हूँ। तो मैं रेलवे को त्याग पत्र देकर मैं हाई स्कूल में हूँ। तो हमारी परवरिश धनबाद डिवीजन में हुई, धनबाद झारखंड, धनबाद जिला में। पलामू में मैं जितेंद्र सर को सुन रहा था कि जितेंद्र सर स्वास्थ्य विभाग में है। मुझे बहुत खुशी है कि जितेंद्र सर है, तो अगर पलामू से हैं तो मैं जितेंद्र सर से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जितेंद्र सर से रूबरू भी होऊंगा। और जब तक मैं रेल में था तो रेलवे में जब तक मैं गुजरात में था, एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था में था, तो समाज से इतना जुड़ने का मुझे मौका नहीं मिला। रेलवे में बाबा साहब के जयंती वगैरह जब भी मनाई जाती थी तो उसमें जब मैं जरूर स्पीच दिया करता था, अपनी समाज के साथ जुड़ा रहता था। लेकिन जब मैं स्टेट गवर्नमेंट में जो मार्केट तब मैं समाज को बहुत नजदीक से देख पा रहा हूँ और हमें यूनिटी की जरूरत क्यों है ये महसूस हो रही है। समाज में बहुत विविधता है, तो मैं इस समाज में जुड़ा हूँ और अब मैं इससे कुछ सहयोग देना चाहता हूँ। उसमें हमारे मित्र हैं नारायण पासवान जी, वो हुसैनाबाद, हुसैनाबाद में वो भी हमारे जब मैं उन्हीं के विद्यालय में मैं मिडिल स्कूल में पदस्थापित था। फिर अभी हाई स्कूल में मैं आ गया हूँ, तो हमारे स्कूल तो दूसरा हो गया, लेकिन उनसे मिलना रोज है, समाज के बारे में बातें रोज करते हैं। वो काफी सक्रिय और बहुत जुझारू, मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है। तो मैं जो वेबिनार में जो मैं भाग लिया हूँ, पहले भी मुझे बात करती है, ये सारी बातें मैं उनको कहा करता था, तो वो भी काफी इच्छुक है इससे जुड़ने के लिए। और मैं भी धनबाद आया हूँ, लेकिन जब उनके पास जाऊंगा तो ये बातें मैं रखूंगा, साथ ही चलना है, क्योंकि अभी जस्ट
नाले भीमा कोरेगांव के बारे में भी वो मुझसे बातें कर रहे थे। और फिर प्रथम शिक्षिका शायद नाम देखिए अभी मैं भूल गया, सॉरी, उनके बारे में भी मुझे बता रहे थे वो। तो मैं कोशिश करूंगा, बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा कि मैं भी चलूं और सर के सामने मैं अपनी बातें रखूंगा, क्योंकि समाज के बहुत मजबूती से लेके वो चल रहे हैं नारायण पासवान से। तो उनसे ये बातें रखूंगा और फिर वो जैसा दिशा निर्देश देंगे फिर मैं वैसा काम करूंगा। और जितेंद्र सर, आप सुन रहे हैं तो सर मैं कहता हूँ सर, आप सर पलामू में कहाँ पे हैं सर? जितेंद्र सर? जी अभी पलामू जो है वो उनका हाँ सर, मैं पलामू हुसैनाबाद में हूँ। जी ओके, अभी बीच में हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। आप कांटेक्ट नंबर अपना छोड़ दीजिए चैट बॉक्स में। पलामू डाल्टनगंज में है, झारखंड में, झारखंड राज्य में है, रांची के बगल में है। और ओके हम ओके लोग पटना के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे सारे लोग अपने ग्रुप के। तो हम लोग यहाँ से प्लानिंग वहीं से कर लिए थे कि हम लोग को सांची जाना है। अब आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में कांटेक्ट नंबर लिख दीजिए और आपस में बिल्कुल बातचीत कीजिए। ये लाइव मीटिंग चल रही है, समय हमारे पास कम रहता है। प्लीज बहुत बहुत साधुवाद रविंद्र कुमार साहब, आपने काफी अच्छी जानकारी हमारे बीच में रखी, बहुत बहुत साधुवाद। आज की जो वेबिनार है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष साहब, माननीय मानिक बरुआ साहब। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा भाई, आज की वेबिनार के अध्यक्ष जो उद्बोधन है वो अपने बीच रखे हैं इस वेबिनार में। नाम तो क्योंकि समय हो रहा है तो मैं आज की इस वेबिनार को समापन की ओर ले जाने से पूर्व संस्था के संस्थापक महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब से सादर विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आज की इस वेबिनार में हमारे कुछ साथियों के क्यूरी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके मन में कुछ क्यूरी क्वेश्चंस है, तो उनका समाधान करते हुए आज के अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें माननीय संस्थापक महोदय। उन्हें सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए, जैसा कुछ साथियों ने आशंका व्यक्त की है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इनमें प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, तो मैं आप सभी साथियों को बता दूं निवेदन के साथ कि कार्यक्रम अवश्य होगा, बहुत अच्छा होगा और आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, किसी भी गलतफहमी का शिकार मत होइए। आप मध्य प्रदेश जहाँ सांची में है वहाँ किसी प्रकार का कोई कर्फ्यू नहीं है, नाइट कर्फ्यू है जो पूरे देश में लगा है। आवाजाही में भी अभी तक की सूचना के अनुसार कोई प्रतिबंध नहीं है, तो इसलिए ये परिस्थितियां लंबे समय तक भारत में रहने वाली हैं। कोरोना जैसी महामारी से बहुत जल्दी हम लोगों को मुक्ति मिलने वाली नहीं है, ये वायरस लंबे समय तक चलेगा। तो इस वायरस में अगर हम इससे डरेंगे या भयभीत होंगे तो निश्चित रूप से हम आंदोलन को कमजोर कर देंगे।
आंदोलन को कमजोर नहीं होने देना है। हर हाल में जैसी भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए हमें धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से संगठित होना है, मजबूत होना है और आगे बढ़ना है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हमारे बीच में हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, जिसकी लगभग संपूर्ण भारत के हिसाब से 20% करीब आबादी है, बड़ा राज्य पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और एक राज्य और है कोई। तो ये राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं। अगर कोरोना का इतना बड़ा प्रकोप होता या इतना बड़ा प्रभाव होता तो फिर सिस्टम चुनावों पर भी प्रतिबंध लगाता। और अभी आप देख रहे हैं कि लोगों की 1-1 लाख की भीड़ की रैलियां हो रही है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें साऊ फूले, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को रुकने नहीं देना है। हमें अपने संत गुरुओं की विचारधारा को, बुद्ध की विचारधारा को बड़ी तेजी से उसका प्रचार प्रसार करना है। इसलिए आपको मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं, वॉल पेंटिंग, पोस्टर, होर्डिंग्स ज्यादा से ज्यादा आप लोग लगाइए। अपने अपने क्षेत्रों में दीवारें आप लिखवाइए, पोस्टर लगाइए, होर्डिंग्स लगाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर सकते हैं आप लोग करिए। और शायद मैं समझता हूं कि आज हमारे 10 जून की भी मीटिंग समाप्त होने वाली है। मुझे ठीक से नहीं मालूम, शायद आज आखिरी है, हो सकता है और कोई जोन बचा है। मास्टर साहब, कोई और जोन बचा है क्या? नहीं बचा सर, पूरे हो गए। हाँ, पूरे हो गए आज। तो कल का दिन और आप लोग छोड़ दीजिए। 10 तारीख तक ज्यादा से ज्यादा बड़ी तेजी से आप लोग वॉल पेंटिंग, होर्डिंग्स और धम्मदान यानी कलेक्शन, चंदा आप लोग करिए। और 11 तारीख से फिर आप लोग इस काम के साथ साथ फेसबुक पर आकर आप अपने अपने फेसबुक पेज पे उपस्थित होकर और जो फोल्डर आपको मिला है उसके आधार पे आप 10-10, 15-15 मिनट बोलिए। देखिए, आप अपने फेसबुक पे जब बोलेंगे तो आपके कम से कम 5000 फ्रेंड होंगे, तो वो आपकी स्पीच 5000 लोगों तक पहुंचेगी। और उनको बोल रहे हैं आप कि सब शेयर करें। अगर उसमें से 10 लोगों ने शेयर कर दिया तो 50,000 लोगों तक आपकी स्पीच पहुंचेगी। ऐसे ही करके हमें सोशल मीडिया की मदद लेकर बड़े पैमाने पर सांची के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना है, ये विशेष ध्यान रखिए। व्हाट्सएप पे आप 5-5 मिनट के वीडियोज बनाकर तो अपने सभी ग्रुपों में आप वीडियो के माध्यम से भी सांची के प्रचार प्रसार करिए और लोगों से अपील करिए इस पावन भूमि पर वो अवश्य में परिवार के आए। इस किस्म से आप लोग करिए। और जितने भी आपके यहाँ प्रिंट मीडिया है यानी अखबार हैं, छोटे बड़े जैसे भी हैं, बड़े से बड़े अखबार, छोटे से छोटे अखबार, सभी में आप प्रेस नोट दीजिए। प्रेस नोट दीजिए कि आगामी महासभा द्वारा सांची में 2 दिवसीय धम्म संगति समारोह आयोजित किया गया है। अंडरलाइन उसमें नीचे फिर आप अपना मैटर बना के पूरा लिख दीजिए। फोल्डर आपके पास है, फोल्डर के आधार पे आप लोग सारी प्रेसों में न्यूज दीजिए। देखिए, कल मैंने आगरा के साथियों को कहा कि भी आप न्यूज बनाकर भेजिए, तो उन्होंने बना के भेज दी। तो आज दैनिक जागरण में छप गई
और मुझे लगता है कि कम से कम 10 लाख लोगों ने उसको पढ़ा होगा। तो जो भी सीमित संसाधन या संसाधनों में हम अपना स्थान बना सकते हैं, ये हमारी योग्यता और हमारी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि जो दूसरों के पास संसाधन हैं उसमें भी हम कितना प्रचार प्रसार ले लें, है ना, कितना हम अपना स्थान उसमें भी बना लें। काम करना तो ये प्रोग्राम निश्चित रूप से होगा, और अगर कोई विशेष परिस्थितियां होंगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो फिर उसके लिए हम आपको खुद इन्फॉर्म करेंगे, हम खुद आपको सूचना देंगे। आपसे ज्यादा हमें चिंता है, आपसे ज्यादा हम सोच रहे हैं, हर पहलू पर, हर किस्म के पहलू पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो आप अपने जिम्मेवार साथियों पर, अपने सीनियर साथियों पर भरोसा रखें और पूरी ताकत के साथ आप सांची में जो आयोजित धम्म संगति उसे कामयाब बनाने के लिए लग जाएं। और मैं यही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद साहब। आज की इस वेबिनार में हमारे बीच में जिन साथियों के जो क्वेश्चन थे, आपने सभी के निश्चित ही डाउट्स जो हैं वो क्लियर किए हैं, और सभी साथी बिल्कुल तन मन धन से बिल्कुल लगे रहें, आखिरी बनाने के लिए लगे रहेंगे।